मेरे मैलोड 92.95 परसेंटाइल थे नीट में। 92.95 परसेंटाइल नीट में। मैलोड एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है मैलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं, जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडब्ल्यू कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यूआर ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा मतलब। तो मुझे ना तो EWS का बेनिफिट मिला, ना यूआर ओपन में मुझे ईडब्ल्यूएस में तो आपने अप्लाई नहीं किया। मतलब आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया। EWS में अप्लाई किया था। It is available in the government medical colleges, but not in the private medical colleges. That is his main grievance. ईडब्ल्यूएस Yes. Now, EWS implementation has been, it was implemented, it was introduced in the year 2019. Subsequently, in the rules, it was amended in 2021. Right from 2021, it is being carried out, it is being implemented today. But he was, this process has been followed for the past 4 years now. Right. But he did not challenge this prior to the counseling process. He challenges it after the counseling process is over. He participates in the counseling process, he is unsuccessful, and then admittedly he checks the gazette notification which says that the EWS category is implemented only for the government colleges and not the private colleges. Yes. Unfortunately, he does not get a seat in the government college under the EWS quota. And therefore, now he has come and challenged this rule, saying that it is discriminatory and is not applicable to the private medical colleges. He challenged the rule. Now he has challenged the rule. Your reply there? My reply, Your Lordship, we filed it today. No? Yes. A reply there. It has been uploaded. So what is your reply? This is what you said. Your Lordship, in paragraph, my first contention in paragraph 4 is that the entire process is over by 5th of November 2024. And several decisions of the Honorable Supreme Court where the time schedule prescribed in respect of the medical admissions has to be adhered to. My second submission is that having participated in the counseling process, he did not raise any objection prior to the counseling process or at the time of participating in the NEET PG, NEET UG. So Mr. Athar, ये तो आपने इसको चैलेंज किया है, तो इनका अमेंडमेंट है। मैलोड अमेंडमेंट अगर आपने चैलेंज किया है तो दैट विल टेक इट्स ओन कोर्स। So in that case, they have to file a reply and then it will be decided. Maybe benefited to other students, not to you, because you already participated in the process, not succeeded. Then you raise this issue, and as per them, from the last 4 years, they are giving the reservation to the EWS categories. मैलोड में Yes. मेरे मैलोड 92.95 परसेंटाइल थे नीट में। 92.95 परसेंटाइल नीट में। मैलोड एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है मैलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं, जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडब्ल्यू कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यूआर ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा मैलोड। तो मुझे ना तो EWS का बेनिफिट मिला, ना यूआर ओपन में मुझे EWS में तो आपने अप्लाई नहीं किया। मैलोड आपने EWS में अप्लाई किया। EWS में अप्लाई किया था। So you applied in, इसमें आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला है? मैलोड मिला है। नॉन EWS में? हाँ, नॉन EWS। हाँ मैलोड, जैसे मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करूँ, 10 सीट जानी थी एक कॉलेज में। 13 मेडिकल कॉलेज हैं, 11-12 ऐसी सीट्स गई हैं, कहीं 10 गई हैं, कहीं 11-12 गई हैं।
ऐसे बच्चों को 216 240 ऐसे नंबर पे सीट अलॉट हुई है। एनआरआई की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है, मेरा तो 530 था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पंजाब का एक मैटर गया था रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनआरआई कोटा, वेयर सुप्रीम, मैं उसको बाद में करूँगा मेरा, बट जैसा अभी कहा इन्होंने कि कट ऑफ डेट जा चुकी है 5 नवंबर, इसके लिए एस कृष्णा श्रद्धा में डायरेक्ट गाइडलाइंस है सिर्फ एमबीबीएस के लिए। The ninth para, under exceptional circumstances, if the court finds that there is no fault attributable to the candidate and the candidate has pursued his legal right expeditiously without any delay, and there is fault only on the part of authorities, and there is apparent breach of rules and regulation as well as the related principles in the process of grant of admission which would violate the right of equality and equal treatment, the court, under exceptional circumstances and rarest of rare cases, direct the admission in the same year by directing to increase the seats. However, it should not be more than 1 or 2 seats, and such admission can be ordered within reasonable time. That is within 1 month of the cutoff date. Uh, ये जजमेंट देना। the last para of first judgment, my lord. There are several judgments. ये First judgment, my lord. S. Krishna Shraddha. फ्लैग लगा हुआ है, जो फर्स्ट फ्लैग है। ये और पेपर क्या लूज? My lord, articles which I am referring. First case is S. Krishna Shraddha. ये The last page of that judgment, my lord, 9th para, sub para 2, 8.2 ninth para, my lord, last page, 9 पर है ये। sub para 2nd. Hmm. Here it is written that 1 seat can be allotted if there is the fault of authorities and the candidate is meritorious. Now, my lord, I have to prove that the authorities उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। पहला, my lord, जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का उसमें ये लिखा है the page 16, my lord. The applicability of this Amendment Act 2019 for the increase of annual permanent seat strength need to be implemented from the academic year following the commencement of the Amendment Act. But ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के आपसे नीचे कोई एडमिशन हुआ? URGS में एडमिशन हुआ, उसका चार्ट दिखाओ, कौन आपसे नीचे? मैंने पिटीशन में है वो पेज पेज 69, my lord. पेज 69 में सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है, फॉन्ट बड़ा कर लो उसका, थोड़ा सा। URGS में मान लो 523 से 418, यूआर के कौन से है इसमें? URGS में मान लो 489 से 523 के बीच अलॉटमेंट हुए हैं। और सीट अलॉटमेंट ज्यादा था गिवन परसेंटेज से, 3 सीट्स जानी थी, GS में 4 सीट गई हैं, तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है माय लॉर्ड 489 पर। कौन से लास्ट? इट इज एट पेज 69. पेज 69, See, this inserted नीचे से माय लॉर्ड जो कॉलेज के बंच हैं उसमें 4th नीचे से सुख सागर मेडिकल कॉलेज, सुख सागर माय लॉर्ड उसमें लास्ट सेकंड माय लॉर्ड, सुख सागर कॉलेज की लिस्ट में लास्ट सेकंड। URGS स्टार्टिंग हुई थी 523 पे और एडमिशन हुआ 489 पर। NRI माय लॉर्ड 484 पर स्टार्ट हुआ, 170 पर खत्म हुआ, आपके कितने हैं? 530। 530. द चैलेंज इज दैट माय लॉर्ड कि 22 सीट्स जानी थी, 23 गई, 10 सीट जानी थी, 11 और 12 गई, 3 की जगह 4 गई। अगर माय लॉर्ड मैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड MCC, इट इज इन पेज नंबर 60, पेज 60 माय लॉर्ड।
Just the entry of your medical college. Hello? Sagar Medical College, which entry you are referring? कौन सी entry को आप refer कर रहे हैं? पेज 69 में 60. सर ये entry number एंट्री नंबर 115 कौन सी entry आप refer? 115 115 में 6-7 entry है. लास्ट सेकंड my lord. Second last. MBBS 173011. My lord. E1. उसमें URGS में स्टार्टिंग हुआ था 523 पर, क्लोजिंग हुआ 489 पर. GS है लेकिन गवर्नमेंट Yes, government school quota. URGS इसमें एक सीट एक्स्ट्रा दी है. Government school quota. आप गवर्नमेंट स्कूल कोटा की my lord एक सीट एक्स्ट्रा गई है, ये मैं कह रहा हूँ. एक से एक्स्ट्रा जैसे रिजर्वेशन 0.5 में आता है. 6.5 आता है तो वो 6 seats ना 6 होगा. my lord 6.3 सीट्स आ रहा था, उसे 7 किया, 6.3 सीट्स को 7 किया. एक बार बस my lord पेज 60 में देखेंगे जो MCC ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहां पर भी 250 सीट्स थी. 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 22.5 सीट्स या 37.5 सीट होती हैं 250 और 150 वाले कॉलेजेस में. 37.5 को 37 राउंड ऑफ किया. ऐसा नहीं कि कहीं पे 37 फिर 38 उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को जो रिजर्वेशन का अलॉटमेंट हुआ है वो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं. 15.2 15.3 नहीं कर सकते. चाहे मैं अगर EWS का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15.6 इंसर्ट हुआ है लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, उसे 10.2 10.5 नहीं कर सकते. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉलो किया. 37 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. जहाँ 250 कॉलेज हैं वहाँ 15% के अकॉर्डिंग 37, जहाँ 150 सीट्स हैं 15% के अकॉर्डिंग 22. कहीं भी ऐसा गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं है. स्टेट ने गलत कर दिया, कहीं पर 6 कहीं पर 7 कहीं पर 8. चतुर्वेदी युवा कैटेगरी में सुख सागर में कट ऑफ किया है 558 पर. my lord आपके 530 है. EWS category my lord. This is what I am saying my lord. They are treating unequals as equals, which is violation of Article 14. कोटा कार्व आउट नहीं हुआ. my lord. जो my lord EWS कोटा था उसे 2 years So, देखो अगर वो कार्व आउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए लीगल इशू. my lord बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16 उसमें लिखा हुआ है कि अगर EWS के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए. 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है. अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी. मैं प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है. फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है EWS कोटा. और GS कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%. उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद GS कोटा अप्रूव होगा. जितनी सीट्स थी उन पर GS कोटा एप्लीकेबल हुआ. वैसे ही EWS में भी अप्लाई कर सकते हैं. उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो SC ST OBC की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए. नहीं हो रही है my lord. सिर्फ अनरिजर्व्ड की सीट्स में से 10% EWS हो जा रहा है. पिटीशन में मैंने वो टेबल भी मेंशन किया है. सिर्फ उसमें एक ही क्लॉज है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. 862 सीट्स जा रही थी विदाउट EWS. विद EWS 187 सीट्स EWS को मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित अभियान में यही कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आर बाउंड टू प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन एंड द सीट्स अलॉटेड टू देम वुड बी प्रोवाइडेड अंडर UR कैटेगरी. मतलब UR से निकाल के जो उन्हें 50 जा रहा है उसकी जगह 40 जाएगा और 10% EWS को मिलेगा. और 5 साल से पेंडिंग है ये. तो जब हमें हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे. अपना फोन खोलो. इसका प्राइवेट कर लेंगे.
LLB. My lord, the clause 6B of Article 15 Hmm? is the clause 6B of Article 15 is the exact replica. वो सब लीगल इशू है जो आप उठा रहे हैं, तो लीगल इशू में फिर वो उस तरह डिसाइड करना पड़ेगा. क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द बर्थ और नॉट, My lord, वेदर यू विल गेट सीट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. वो तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का क्या है करना, फिर वो ये देखा जाएगा सीट बढ़ेगी तो वो इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगी वेदर सीट टू बी इंक्रीज नॉट इंक्रीज. वो तो ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी सीट्स बढ़ाने के लिए my lord. अभी तो एक सीट के लिए इंटरिम रिलीफ है मेरा, एक सीट के लिए, क्योंकि अगर आज नहीं मिलती है तो नेक्स्ट हियरिंग पे तो my lord जो पिटीशन का मेन रिलीफ है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा. नहीं वो यू आर राइट, वो तो एक ओपिनियन आएगी कोर्ट की कि वेदर यू आर राइट और दे आर राइट, यस my lord. वो आएगा. इफ यू आर राइट then the direction can be issued to the other side. my lord. If you are not, then end of the matter. my lord, एक चीज और है, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 15 का, वो 15(5) का एग्जैक्ट रेप्लिका है. बस जो वर्ड ईडब्ल्यूएस है उसे रिप्लेस कर दिया, मतलब ईडब्ल्यूएस ने रिप्लेस कर दिया वर्ड एससी और एसटी को, ओबीसी को. तो my lord, एससी एसटी ओबीसी को अंडर आर्टिकल 15(5) फुल बेनिफिट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में. उसको प्रमति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अभी जनहित अभियान में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अपहेल्ड किया. तो फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जब जीएस को लास्ट ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है, तो ईडब्ल्यूएस को भी यूआर के अगेंस्ट दे सकते हैं. चलो बिल्कुल, a hard reserve for judgment. Item number 19.